Hello students. Again you are welcomed in English class. Myself Dr. Azera, and today we will read the chapter Glimpses of India. Students, this chapter is divided into three sections. The first part is A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez, and today we will deal with this part. But before starting the chapter, let me give you the background of the chapter. As the name suggests, glimpses, that is glimpses यानी झांकी. तो इंडिया की जो ब्यूटी है, कहीं ना कहीं ओल्ड कल्चर जो है या ओल्ड ट्रेडिशंस जो हैं, या फिर इंडिया की ब्यूटी है इन फॉर्म ऑफ लैंडस्केप्स और इन फॉर्म ऑफ नेचुरल थिंग्स, तो वो सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट ऑथर द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी एसे को यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पे लेसन के फॉर्म में बताया गया है. हियर इन दिस चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा. In this part, the writer has tried to remember his old days when he used to live in Goa, and where bakers used to come and they provide pav rotis, जो baked breads होती थी, pav roti उसको कहते हैं. उसके बारे में यहाँ पे लेखक ने बताया है, राइटर ने बताया है. And these bakers, they played a very important role in lives of people of Goa. Okay, and ड्यूरिंग द पोर्टुगीज टाइम, जब पोर्टुगीज का यहाँ पे वक्त था, जब उनका यहाँ पे रूल था, तो दिस breads were very popular, and bakery was also very popular. They used to make it in different kinds of furnaces और भट्टियाँ जिसको आप कहते हैं. And traditionally these bakers, they used to bake these parotis, and these breads had a very important role in tradition also. So now let us move ahead. This was a very slight introduction about the chapter. Now let us move ahead with the introduction of author. Lucio Rodriguez, 1916. He was born in 1916 and died in 73. And was a great Konkani essayist. Konkan is a place which occupies the west coast of Maharashtra. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी जगह आती हैं. It occupies the western coast of Maharashtra, and he belonged to that place, and he was an essayist. छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे निबंध, इस तरह की चीज़ें वो लिखते थे. And he wrote several articles in English and Konkani. Konkani is again a language. In English and Konkani, he used to write various articles which were published in periodicals or in magazines. Periodicals means जिसको आप कहते हैं पत्रिकाएं, जो मासिक पत्रिकाएं आती थी, उन पे भी इनके बहुत सारे लेख या आर्टिकल्स छपते थे. He served as the visiting professor of folklore at many universities, and also as a professor of English in Mumbai and Goa. So he served as a professor of English in Mumbai and also in Goa. But apart from that, he was also visiting professor of folklore. What is folklore? Folklore यानी लोक साहित्य जिसको कहते हैं, या आप जिसको कहते हैं कि लोक कथाएं. इन फोकलोर्स के कोई ऑथर नहीं होते थे, ये कहीं बिलीव से, कहीं दे वर टोल्ड ओनली बाय माउथ, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी वेरी एंशियंट एंड ओल्ड पीरियड, और वो एक से दूसरे से तीसरे जनरेशन तक ये थ्रू माउथ आती है, तो उसको आप कहते हैं फोकलोर. दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक ऑथर. सो एंड these folklores, they had helped in developing the culture strong, and also the tradition, it emerged from culture and tradition, as you can see. So he was he was a professor of folklore, and in this chapter also he has mentioned some of the traditional things in form of the bakery, in form of baker in Goa. So now let us start the chapter. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. Okay, so there was a tradition previously during the Portuguese time, and still after that, the tradition Goan village baker, there was a tradition. The bakers used to come to places, to homes, and they used to deliver the bread, daily bread, और जिसको आप पावरोटी कहते हैं. they also hold a very important place in the society. उनकी अभी भी जगह है समाज में
पर अब तो ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वो थोड़ा सा कम हो गया है, बट स्टिल दे होल्ड अ पोजिशन. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. Our elders are often heard reminiscing nostalgically, यानी fondly of past, thinking fondly of past, याद करना, बहुत fondly याद करना उसको, about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. So students, ये बच्चे जो पोर्टुगीज लोग थे जब इंडिया में आए तो ये अपने साथ अच्छी चीज़ें भी लाए. इनकी सबसे फेमस चीज़ थी ब्रेड, इनका जो ब्रेड बनाने का तरीका था. और जब गोवा में इनका एक समय था तो वहाँ जो लोग रहते थे उस दौर में, तो उस दौर के दिनों को याद करते हैं, बहुत फॉन्डली याद करते हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं उनकी. और सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरीज हैं ऑफ द बेकर्स एंड द ब्रेड दे एट. तो वो एक उस याद को इस चैप्टर के फॉर्म में डाला है. तो वो ईटर्स, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द बेकर्स आर स्टिल देयर. मतलब जो उस दौर का जो लोग थे, जो लोग जिंदा थे, वो उस तरह की ब्रेड्स को कंज्यूम किया था, उस कल्चर में वो लोग जिए थे. वो हो सकता है अभी ना हो, लेकिन जो बनाने वाले हैं अभी भी उनके वंशज, अभी भी उनके जो जनरेशन है वो अभी भी प्रेजेंट है. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स. तो अभी भी उनमें से पूरे एक सीक्वेंशियली ये चीजें बनती हैं. तो उसमें इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना, दे आर मिक्सर्स, मोल्डिंग, मोल्डर्स एंड वेरियस अदर टाइप ऑफ पीपल आर देयर हु आर इन्वॉल्व, हु आर स्टिल इन्वॉल्व इन बेकरी. तो अभी भी वो मौजूद हैं और अभी भी वो ब्रेड बनाते हैं, पाव रोटी बनाते हैं. Those age old time tested furnaces still exist. उस समय की जो टेस्टेड फर्नेसेस यानी जो भट्टियां जिसको आप कहते हैं, स्टिल दे आर देयर, खत्म नहीं हुई है. ऑल दो पोर्टुगीज का रूल चला गया, पोर्टुगीज चले गए, पुराने लोग जो उनके दौर में थे वो चले गए, बट स्टिल जनरेशन उनकी अभी है. उस समय का वो टेक्निक अभी भी प्रेजेंट है उन जनरेशन्स में, अभी भी वो भट्टियां मौजूद हैं. तो अब भी सारी चीजें हैं और उनके साथ क्या है, वो मेमोरीज भी अभी भी ऑथर के दिलो दिमाग में मौजूद है. द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. सो यहाँ पर अभी भी ये बेकर्स का काम चलता है. वो उसी ट्रेडिशन से, उसी टेक्निक से वो ब्रेड बनाते हैं. वैसे ही फर्नेसेस यानी वैसे ही भट्टियाँ अभी भी जलती हैं और ब्रेड अभी भी बनता है. और वो ब्रेड बनाने में बहुत तरह की आवाज़ें आती हैं, जिंगलिंग, थ्रेडिंग. ये ट्रेडिशनल बेकर्स जो हैं वो बैम्बू के बास्केट में ब्रेड्स को लेके घूमते थे और प्लस बैम्बू की स्टिक पे अपनी बास्केट को रखते थे. तो ये सारी चीज़ें, या फिर उनका अभी भी मॉर्निंग टाइम में आना और ब्रेड को बेचना, तो वो जो बेचते थे तो वो अभी भी सुनाई देता है. कई जगहों पर वो चीज़ें अभी भी सुनाई देती हैं और ये जो पुरानी यादें हैं उनको और ज़्यादा वो ताज़ा करती हैं. तो अभी भी वो कस्टम और ट्रेडिशन गया नहीं है, वो है. हाँ, उतने बड़े पैमाने पे, उतने बड़े पैमाने पे नहीं है, लेकिन अभी भी वो एग्जिस्ट करता है. तो ये चीज़ें जो है आप जो है इस चैप्टर के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंस रखता था ये ट्रेडिशन बेकिंग का गोवन पीपल के जिंदगी में या उस सोसाइटी में जो पोर्टुगीज के टाइम में थे. और स्पेशली उस ट्रेंड को उन्होंने देखा है और उस ट्रेंड में उन्होंने जिया है. तो ये चीज़ें जो है अभी भी हमें नजर आती हैं. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as pedder in Goa. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion, and guide. He used to come at least twice a day. Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskins or Bastin, the maid servant of the house.
the maid servants of the house. What we long for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. तो यहाँ पर हो सकता है कि वो ट्रेडिशनल जो बेकर्स थे उस दौर के, उनके फादर अभी भी नहीं होंगे, उनके फादर अलाइव नहीं होंगे, लेकिन वो ट्रेडिशन जो है वो उनकी अगली जनरेशन में उनके बच्चों में आ चुकी है और वो अभी भी वो कैरी करते हैं उस ट्रेडिशन को, उस प्रोफेशन को, स्पेशली बेकिंग के प्रोफेशन को कैरी करते हैं, उस कल्चर को कैरी करते हैं, उस टेक्निक को अभी भी उनके बच्चे कैरी करते हैं। और ये बेकर को वहाँ पे क्या कहा जाता था बच्चों, इनको पैडर कहा जाता था, पैडर इन गोवा, ठीक है ना, इनको पैडर कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है। और ये बचपन में जो ऑथर जो है, राइटर जो हैं, वो अभी भी याद करते हैं कि उनके चाइल्डहुड में ये पैडर्स आते थे, बेकर आते थे और वो इन बेकर्स को अपना फ्रेंड मानते थे, कंपेनियन मानते थे या फिर गाइड मानते थे। वो डेली उनके घरों में आते थे 2 बार, दे यूज्ड टू कम ट्वाइस अ डे। एंड एक बार तो जब वो सुबह आते थे तो अपनी ब्रेड बेचने के लिए, पावरोटी बेचने के लिए एक बार आते थे और पूरे जगह घूम के फिर वो दोबारा जब आते थे तो सेकेंड टाइम हो जाता था। तो दे वंस दे केम इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन रिटर्निंग आफ्टर एम्प्टिंग द ह्यूज बास्केट। पूरा बेच के, पहले ताजा माल लेकर आते थे, सुबह बेचने के लिए निकलते थे, तो पहली बार उनका एक विजिट होता था। उसके बाद जब वो पूरी कॉलोनी और सोसाइटी में जब बेच के निकलते थे, जब उनकी पूरी बास्केट खत्म हो जाती थी, बिक जाती थी पावरोटियां या ब्रेड्स, तो फिर वो वापस आते तो सेकेंड टाइम उनका विजिट होता था। और जैसे ही वो विजिट करते थे ना, तो उनकी जो बास्केट्स होती थी, वो बैम्बू बास्केट की जो जिंगलिंग थी, निकालना, रखना, उतारना, चढ़ाना, तो वो जो साउंड आती थी, जिंगलिंग एंड थर्ड साउंड, वो साउंड जो है वो उसके बैम्बू के बास्केट से आती थी। तो वो इनके बचपन में इनको उठा देती थी, ऑथर को उठा देती थी राइटर, उससे जगते थे मॉर्निंग में और तुरंत वो चले जाते थे वहां पर उसको देखने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए, क्योंकि वो उनका कंपेनियन हुआ करता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ब्रेड के लिए ही उठते थे बच्चे, या ऑथर ब्रेड के लिए उठते थे? नो। तो ये तो ब्रेड तो घरों के जो मेड सर्वेंट्स होते थे वो खरीदते थे, उनको पता होता था कि डेली उनके घर की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो मेड सर्वेंट्स जाके वो खरीदते थे ब्रेड। मेन ये बच्चे क्यों उठते थे? वो उठते थे ब्रेड बैंगल्स के लिए। एक अलग तरीके का ब्रेड बनाया जाता है और वो ब्रेड बैंगल्स कहा जाता है उसको। और वो ब्रेड बैंगल्स खाने के लिए, उसकी खुशबू सूंघने के लिए या उसको देखने के लिए लोग इतनी सुबह उठते थे जब ये पैडर्स आते थे। अपनी आवाज, बैम्बू के बास्केट की जब आवाज सुनते थे, तो इस आवाज को सुन के बच्चे इंक्लूडिंग ऑथर ये भी अपने स्लीप से तुरंत जग जाते थे। और कभी कभी स्वीट ब्रेड के लिए भी वो उठते थे, जो बहुत स्पेशल टेक्निक से बनाया जाता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झिंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बॉम्बू स्टफ. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. ये देखिए, इस तरह का एक बैम्बू का स्टिक होता था जिसको ये लोग ग्राउंड पे खड़ा करते थे एंड दिस इज द बास्केट। तो जब ये आते थे ना, तो ये एक म्यूजिकल एंट्री इन लोग की होती थी, बेकर्स की, अकॉर्डिंग टू ऑथर। यहाँ पे कौन सी म्यूजिक आती थी? झैंग झैंग साउंड से ये अपना पूरा सामान को ये अगर खरीदने के लिए आता था, बोलता था, तो ये अपना पूरा बम्बू खड़ा करते थे, उसमें बास्केट अपनी लैंड करते थे, तो उसमें पूरे में एक साउंड आती थी झैंग झैंग की। और वो झैंग झैंग की साउंड जो है वो बहुत अच्छी लगती थी, एक म्यूजिक उससे प्रतीत होता था। तो ये एक हाथ से अपनी बास्केट को अपने सर पे होल्ड करते थे और दूसरे हाथ में बैम्बू को स्टिक को ग्राउंड पे रखते थे। तो इस तरह से दोनों हाथ जो होते थे इनके एंगेज्ड होते थे। एंड ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। ये देखिए, ये बास्केट को अपने सर से बास्केट उतारते हैं और ये बैम्बू जो है इसके ऊपर ये अपनी बास्केट रखते हैं। और जो घर के जो लोग होते हैं उनको स्पेशली विजिट जब करते हैं, जब घर के लोग खरीदने आते हैं, तो उनको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग या नमस्ते जो भी है। और उस तरह की विशिंग के बाद ये अपनी बास्केट को इस बम्बू के स्टिक पे या बम्बू पे ये रखते थे।
We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant but we would not give up. तो बच्चे भी वहां पे भीड़ लगा के खड़े हो जाते थे. एंड ये छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो जब कुछ इस तरह की चीज देखेंगे तो उसको घेर के खड़े हो जाते थे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. तो यहाँ पर ये खड़े होते थे तो इनको बड़े लोग हटा भी देते थे बिकॉज दे यूज टू क्राउड दैट पर्टिकुलर मैन. तो स्कोल्डिंग्स के साथ हटा देते थे, लेकिन स्टिल बच्चे अपने काम में लगे होते थे, वो वहां पे खड़े ही रहते थे. ये देखिए बच्चों, ये है वो ब्रेड बैंगल्स जो जिसके बारे में राइटर बात कर रहे हैं. ये बहुत स्वीट और स्पेशली बेक्ड होती थी और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती थी, उन्हें बहुत पसंद होती है. ये स्पेशली इसी ब्रेड बैंगल के लिए बच्चे सुबह उठते थे बेकर को देखने के लिए और उसको अपना फ्रेंड समझते थे. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow, I can still recall the typical fragrance of those loaves for elders and the bangles for children. तो ब्रेड के जो पूरे पाउरोटीज जो होती थी, लोव्स जो होते थे, वो बड़े लोगों के लिए होते थे और इस तरह की जो बैंगल्स होती थी, स्वीट होती थी, ये बच्चों के लिए होती थी. और ये बच्चे इसके लिए इतने एक्साइटेड होते थे कि डांटने के बाद भी ये कहीं कोई भी ऊंची जगह पे खड़े हो जाते थे, चाहे पैरापेट पे, चाहे दीवार पे, कहीं पे भी बेंच पे खड़े हो जाते थे और उसकी बास्केट में झांकने लगते थे. और इनको वो उसकी फ्रेग्रेंस जो थी ना वो खींच लाती थी. उसकी जो खुशबू होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग होती थी. तो इसके लिए ये बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर उसके बास्केट में झांकते थे. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea would wash and clean up everything so nicely after all. So यहाँ पे इतने excited होते थे बच्चे कि ऑथर कहते हैं कि हम लोग इतने एक्साइटेड होते थे कि हम लोगों को अपने सुबह उठ के ब्रश करने का या मुंह धोने का हमें कहीं ख्याल ही नहीं होता था कि करना चाहिए. बिकॉज दे थॉट दैट वाई टू ब्रश आवर टीथ एंड वाई टू प्लक वन मैंगो लीफ फॉर टूथब्रश. पहले लोग उससे करते थे ना, दातून होता था या फिर ट्री के छोटे छोटे ब्रांचेस स्टेम्स को तोड़ के उससे दांत मांजते थे, चाहे नीम हो गया चाहे और भी प्लांट से, और उससे वो दांत साफ करते थे, ब्रशिंग होती थी. तो ये बच्चों को लगता था जरूरत क्या है. कभी टाइगर को ब्रश करते हुए देखा है क्या? जब गर्म चाय पियेंगे तो उसके साथ ही साथ अपने आप मुंह के अंदर के जितनी भी जर्म्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब वॉश ऑफ हो जाएंगी और मुंह अपने आप साफ हो जाएगा. सो दे शोड देयर एक्साइटमेंट एंड देयर longing for the this thing bangles, okay, or longing for this bread. It was so tempting for them that they never wanted to brush their teeth or clean their mouth before eating it, okay. And marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinghas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. It was single piece long frock reaching down the knees. तो यहाँ पर जो मैरिज में भी ना स्पेशली इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी, क्योंकि बिना बेकर्स के या बिना स्वीट ब्रेड के, जिसको बोल कहा जाता है, एक स्पेशल डिश बनाई जाती है शादी के लिए. और ये सारी चीजें जो है ना, ये स्वीट ब्रेड एक ट्रेडिशनल ब्रेड होता था जिसको बोल कहते हैं. तो ये अगर नहीं होता था तो किसी भी तरह का फेस्टिवल या फीस्ट या पार्टी या फिर मैरिज गिफ्ट्स जो हैं, इसको गिफ्ट के फॉर्म में भी दिया जाता तो सारा मीनिंगलेस हो जाता था. अगर ये कहीं नहीं है तो वो मैरिज में कोई मजा नहीं आता था, कोई चार्म नहीं होता था इन ब्रेड के अलावा. तो देख लीजिए कितना ये इंपॉर्टेंट है उस सोसाइटी के लिए. अभी भी यहाँ पर होता है. और हर विलेज में जब जिसके घर में एंगेजमेंट या शादी जैसा ओकेजन होता है तो घर के लेडीज जो हैं इस तरह की ब्रेड या सैंडविचेस जरूर प्रिपेयर करती हैं. और केक और बोलिनास भी बनाए जाते हैं जो स्पेशली बेक्ड होते हैं क्रिसमस के लिए और भी फेस्टिवल्स के लिए. और इसके लिए क्या जरूरी होता है? फर्नेस यानी कि भट्टी जरूरी होती है. और स्टिल ये भट्टी
अभी भी हर गांव में गो आके प्रेजेंट है, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नाउ दिस बेकर्स, ये जो ब्रेड सेलर्स होते थे, ये इनको जो पैडर होते थे, इनकी एक स्पेशल ड्रेस होती थी जिसको आप कबाई कहते हैं। और ये कबाई कुछ नहीं, एक लंबा सा फ्रॉक होता था, सिंगल पीस फ्रॉक होता था, या गाउन आप कह लीजिए, लंबा सा गाउन टाइप होता था जो नीज तक आता था, यानी घुटनों तक आता था। इस तरह का उनका एक स्पेशल ड्रेस होता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स which were shorter than full length ones and longer than half pants। तो शर्ट पहनते थे, और जैसे ऑथर रिकॉल करते हैं कि उनके चाइल्डहुड में उन्होंने देखा कि जो बेकर होते थे या जो पैडर होते थे उनका एक स्पेशल ड्रेस होता था कबाई, उसके साथ कभी कभी ये बेकर्स जो है शर्ट पहनते थे, और शर्ट के नीचे जो ट्राउजर या पैंट होता था वो फुल पैंट नहीं होता था, ना हाफ होता था, ना निकर होता था, वो कुछ ऐसा होता था कि हाफ पैंट से लंबा होता था लेकिन फुल पैंट से छोटा होता था। तो उस तरह का पैंट पहनते थे, उसके ऊपर शर्ट पहनते थे। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। तो अभी भी, क्योंकि ये उस समय का बेकर्स का ट्रेडिशनल ड्रेस हुआ करता था, अब तो नहीं लोग उतना उसको पहनते होंगे, लेकिन अभी भी कोई आउट ऑफ फैशन अगर इस तरह का हाफ पैंट जो कि नीज से थोड़ा नीचे होता है और उसके ऊपर कोई एक शर्ट पहन के अगर बाहर निकलता है, तो अभी भी उसको सुनने को मिलता है कि ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो उस दौर के पैडर के आउटफिट को वो रिजेंबल करता है। The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. तो बेकर जो है ना, वो वहां पे उस समय में ये होता था, ऐसा नहीं कि आपने अभी बेकर आया, बेकर को अभी आपने पैसे दिए और पैसे देके आपने उसे ब्रेड खरीद लिया, उसके पास जो भी खरीदना आपने खरीद लिया। नो, वो पूरे मंथ में वो क्या कितना सामान उसने, कितना आपने उसे प्रोडक्ट लिया है, उसको लिखा जाता था दीवार के ऊपर। जो घर की दीवारें होती थी ना, उसमें पेंसिल से मार्क कर लिया जाता था, और मंथ में एक बार वो अपनी बिल कलेक्ट करने आता था एंड ऑफ द मंथ में। तो ये कस्टम होता था कि एक दिन में नहीं लेना पैसे, उसको मंथ के लास्ट में, एंड ऑफ द मंथ में लेना होता था, और पूरा हिसाब जो है वो दीवार पे लिखा होता था, मार्क किया होता था, इट वॉज मार्क्ड इन पेंसिल। एंड देन ऑल्सो एंड नाउ ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। इसमें प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है बच्चों? क्योंकि इसका एक बहुत अहम रोल है सोसाइटी में, इसकी डिमांड है, चाहे शादी हो, चाहे कोई ओकेजन हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, तो उसमें इस स्वीट का या बेकिंग प्रोडक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसका सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो दैट्स वाई ये प्रोफेशन जो है कहीं से भी जो है आपको नुकसान का नहीं है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। ओल्ड एज में ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता था, और यहाँ पर माना जाता है कि बेकर कभी भूखा नहीं रह सकता या कभी उसकी फैमिली भूखी नहीं मर सकती। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ये ट्रेंड में होता है, उनका कभी भी काम जो है या प्रोफेशन जो है वो कभी बंद नहीं हो सकता। और जो बेकिंग प्रोफेशन से जो लोग बिलोंग करते हैं और उनकी जो फैमिली है या उनमें उनको सपोर्ट करने वाले जो सर्वेंट्स थे, वो हमेशा हैप्पी होते थे, हमेशा प्रॉस्परस होते थे, क्योंकि ये इनकी प्रोडक्ट्स जो थे, ब्रेड जो थी वो हाथों हाथ बिकती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था सोसाइटी का, इम्पॉर्टेंट हिस्सा था कल्चर का, इम्पॉर्टेंट हिस्सा था फेस्टिवल्स का। तो यहाँ पर ये इनका होना जरूरी था, इसीलिए हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ चलते हैं। और इनकी फैमिली कभी भी जो है ना वो बहुत एक हैप्पी लुकिंग फैमिली होती थी। और उसका एग्जाम्पल बताते हैं राइटर के, उनकी जो फिजिक होती थी बिल्कुल प्लम्प होती थी। सही है, बहुत प्लीजेंटली आदमी का जब सेहत होती है तो बॉडी जो है प्लम्प होता है, प्लम्पी बनती है। ऐसा नहीं कि बहुत ओवर ईटिंग से प्लम्पी है, ये जो हैप्पीनेस से जो बॉडी में जो एक वॉल्यूम आता है वो उस तरह की फिजिक उनकी दिखती है। और ये फिजिक देख के ये समझ में आता है, ये एक खुला प्रूफ है, ओपन टेस्टिमनी है कि बिल्कुल ये इनकी फैमिली जो है इस प्रोफेशन में हैप्पी है, इस प्रोफेशन की वजह से वो प्रॉस्परस भी है।
और आज भी कोई भी पर्सन जो है अगर मोटा ताजा या फिजिकली उस फिट एकदम दिखता है तो उसको इस बेकर के साथ कंपेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेकर्स अपने दौर में जब थे तो वो बहुत प्रॉस्परस थे और इसका जो सीधा साधा जो इफेक्ट पड़ता था वो उनके फिजिक पे और उनकी हेल्थ पे भी दिखता था। I hope so you have understood the chapter very well. Thank you for watching and please do like, share and subscribe Zahra's classes and also Zahra's classes Hindi. Students, don't forget to press the bell icon so that you can receive the notification as soon as new video is uploaded. Thank you.